Today we will discuss on level of prevention. So, prevention is better than cure. Introduction. Nurses have 4 fundamental responsibilities followed below: promotion of health, prevention of illness, restoration of health, and alleviation of suffering. So, the 4 fundamental responsibilities are very important. Firstly, the promotion of health. The promotion of health is very basic responsibilities and very important responsibilities for nurses, and the prevention of illness and restoration of health and alleviation of suffering. The 2 phases of disease are pre-pathogenesis and pathogenesis. Firstly, we will discuss on prevention, definition and concept. Firstly, the action aimed at eradicating, eliminating or minimizing the impact of diseases and disability or it none of are feasible retarding the progress of the disease and disability are called a prevention. किसी भी disease को होने से पहले stop करना, रोकना, उसका prevention होता है. Then concept of prevention is best defined in context of level, traditionally called a primary, secondary, tertiary prevention. A 4th level called primordial prevention was later added. Firstly, the level of prevention is divided into 4 parts: primordial prevention, primary prevention, secondary prevention, and tertiary prevention. So, the primordial prevention is defined as this is a prevention of development of a risk factors in a population group which they have not yet appeared. Special attention is given in a preventing chronic diseases. Main intervention is health education. In this effort are dedicatedly towards discouraging people from adopting harmful lifestyles, habits through individual and mass education. So, the primordial prevention is the meaning of any prevention किसी भी risk factor को होने से पहले. So, the primordial prevention is the prevent the emergence of any risk factor. किसी भी risk factor को होने से पहले stop करना primordial prevention होता है. For example, many adult health problems such as obesity, hypertension have the early origin in childhood because this is the time when lifestyle are formed. For example, smoking, eating pattern and physical exercise. In the primordial prevention, अपन एक तरीके से समझें तो जो बचपन से अपन को किसी चीज़ को प्रिवेंट करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अपन को आगे चल के ओबेसिटी ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, तो अपन क्या करते हैं, अपनी डेली लाइफ स्टाइल्स को फॉर्म्ड करते हैं और चेंजेस करते हैं उसमें. जैसे कि स्मोकिंग हुआ, स्मोकिंग वगैरह को नहीं करना, ईटिंग पैटर्न को मेंटेन रखना, फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, दीज आर द प्राइमोडियल प्रिवेंशन. सो द प्राइमोडियल प्रिवेंशन बिगिंस इन चाइल्डहुड. हेल्थ रिस्क व्हेन health risk behavior begins, pattern, teachers and peer group are important in imparting health education to the children. Primordial prevention में क्या होता है, जो जब अपन बच्चे रहते हैं तो एक more important जो कैटेगरी जो पार्ट निभाते हैं वो अपने पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, अपने पीयर ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो अपन को प्रॉपरली हेल्थ एजुकेशंस देते हैं. These are the primordial prevention. Next example of primordial prevention is national programs and policies on food and nutrition, comprehensive policies for discourage smoking, alcohol and drugs, then to promote regular physical activity, then making major changes in lifestyle. These are the primordial prevention examples. Now, we will discuss on primary prevention. Firstly, the primary prevention can be defined as the action taken prior to the onset of disease which removes the possibility that the disease will ever occur. It means we have to prevent the emergence of disease risk factor. किसी भी particular disease के risk factor को prevent करना primary prevention होता है. Then in this action are taken before the onset of disease. It signifies interventions in the pre-pathogenesis phases of a disease or health problems. It means the primary prevention can be defined as the prior to the onset of a disease. किसी भी डिसीज़ को, पर्टिकुलर डिसीज़ को अकर होने के पहले उसका प्रिवेंशन लेना, मीन्स उसके रिस्क फैक्टर्स को देखकर. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को ओबेसिटी है तो वो उस चीज़ को ठीक करेगा, उसके एग्जांपल्स उसके हिसाब से कि हमको आगे चलकर हाइपरटेंशन ना हो या डायबिटीज़ मेलाइटिस ना हो. इन सारी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो प्राइमरी प्रिवेंशन लेगा. नेक्स्ट,
It includes the concept of positive health, a concept that encourages achievement and maintenance of an acceptable level of health that will enable every individual to lead a socially and economically productive life. So this is a primary prevention. The primary prevention is basically divided into two categories. For prevention, firstly health promotion, second one is specific protection. The health promotion is basically provide for the everyone in community is health education, environmental modification, nutritional intervention, lifestyle and behavior changes. In a health education, we have provide the properly health education for every diseases and making the good lifestyle. We have provide the health education for the community peoples because the rural community peoples are illiterate and they have no ideas for the proper health education, proper nutrition and proper basic lifestyle. Then the specific protection. Under the specific protection, firstly immunization and seroprophylaxis, then chemoprophylaxis, use of specific nutrients or supplements, safety of drugs and food, and control of environmental hazards. For example, air pollution. The health promotion is the process of enabling people to increase control over the determinants of health and thereby improve their health. Or health promotion is direct towards strengthening the host or process enabling people to increase control over and to improve the health. So, main aim of health promotion is to enable the pupil to increase control over health and to improve the overall health. Firstly, health promotion का main motive क्या होता है? किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन की हेल्थ को इम्प्रूव करना, द ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करना हेल्थ प्रमोशन का मेन मोटिव होता है. देयर एम कैन बी अचीव बाय द फॉलोइंग इंटरवेंशंस. ये जो एम है किसी भी हेल्थ का, किसी भी पर्सन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो बेसिकली एम होता है वो कैसे फॉलोड होता है, वो ये जो इंटरवेंशंस है अपन देकर उस चीज़ को अपन उसको पा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एजुकेशन, environmental modification, behavioral changes, lifestyle changes, nutritional intervention. Under the health education, in the health education to improve health habits and health consciousness in the community. अपन क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को प्रॉपरली हेल्थ एजुकेशन देते हैं, उनको बोलते हैं अपन कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीजिए, अपनी हैबिट्स में चेंज लाइए. बेसिकली इन अपन कम्युनिटी एरियाज़ में जब जाते हैं तो जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अपन जो विलेजेस हैं, अपन गाँव के इंसानों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकें. देन इम्प्रूव इन न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ द कम्युनिटी. फर्स्टली जो विलेजेस होते हैं वहाँ न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड नहीं होता क्योंकि उनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं रहता कि किस चीज़ में क्या न्यूट्रिशन है, किस चीज़ में आयरन है, किस चीज़ में प्रोटीन है, फैट क्या होता है, ये सारे नॉलेज उनको नहीं होता. तो ये जो हेल्थ एजुकेशन है वो अपन बेसिकली रूरल एरियाज़ में जाकर देते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. द नेक्स्ट वन इज़ हेल्थफुल फिजिकल एनवायरमेंटल, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, एक्सक्रीटेड डिस्पोजल एक्सेट्रा. अपन इसमें क्या है उनको प्रॉपरली हेल्थ एजुकेशन देंगे फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए कि आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए. और अपन मतलब सिटीज़ में भी देखा जाए तो जहाँ जैसे किसी के घर के यहाँ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली नहीं है या प्रॉपरली हाउसिंग नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, लाइटिंग नहीं है प्रॉपरली, तो अपन इसके बारे में उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि इस चीज़ से आगे चल के आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आपके फ्यूचर आपको हो सकता है. देन गुड वर्किंग कंडीशन एंड पीरियोडिक सिलेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ अ रिस्क पॉपुलेशन. देन द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. अब स्पेसिफिक अपन ने दो देखा, फर्स्टली हेल्थ प्रमोशन, देन सेकंड वन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. इन द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एफर्ट डायरेक्ट टूवर्ड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज और द प्रोविजन ऑफ अ कंडीशन फॉर नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बींग इन अ ग्रुप. इट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, देन प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस एंड केयर ऑफ इंडिविजुअल. फर्स्टली द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में अपन जो इंटरवेंशंस देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अपन किसी भी पर्टिकुलर डिसीजेस के लिए देते हैं क्योंकि अपन नॉर्मल हेल्थ एजुकेशन उनको हेल्थ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, अपन पर्टिकुलर किसी भी डिसीज़ को लेकर उनको इंटरवेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. इन दिस फर्स्टली इम्यूनाइजेशन, देन यूजेस ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, chemoprophylaxis, protection against occupational hazards, protection against accidents, control over general environment and avoidance of allergens. Under that, firstly interventions में अपन देखेंगे firstly immunization. The uses of
इम्यूनाइजेशन इज फॉर एग्जांपल BCG, DPT, MMR वैक्सीन्स। अपन जो है बच्चों को प्रिवेंशन कर रहे हैं, किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अपन जो चीज़ पहले स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, डेट्स आर कॉल्ड आ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अंडर डेट फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बिकॉज अपन अर्ली चाइल्डहुड में अपन ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी डिसीज़ को आने वाले समय में रोकने के लिए। देन कीमोप्रोफाइलैक्सिस, अंडर द कीमोप्रोफाइलैक्सिस tetracycline for cholera, dapsone for leprosy, Chloroquine for malaria, etc. These are the example of chemoprophylaxis. Particular इस डिसीज़ के लिए जो अपन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं ये वो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए होता है। द नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल विटामिन A फॉर चिल्ड्रन, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स फॉर प्रेग्नेंट मदर्स। अब इसमें पर क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के लिए हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं या स्पेसिफिक इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि विटामिन A अपन को चिल्ड्रंस को देना है, आयरन फॉलिक एसिड अपन बेसिकली प्रेग्नेंट मदर्स को देते हैं। दैन नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यूजेस ऑफ हेलमेट, सीट बेल्ट एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट। दैन नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। अपन प्रॉपरली जब किसी भी फैक्ट्रीज में या ऑक्यूपेशनली वर्क करते हैं तो अपन उस हजार्ड से बचने के लिए प्रॉपरली प्रोटेक्शन लेते हैं। देन अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम एयर पोल्यूशन से भी अपन को प्रोटेक्ट होना है। Next one is secondary prevention. Under the secondary prevention, it is defined as an action which halts the process of a disease at its incipient stage and prevents complication. Secondary prevention में क्या होता है, it is a early stage of disease. किसी भी डिसीज़ का स्टार्ट होना जो अर्ली स्टेज होता है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। उसी को अपन उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, द स्पेसिफिक इंटरवेंशंस आर, अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन को डिटेक्ट करने के लिए फर्स्टली अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग टेस्ट्स, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर टेस्ट एंड रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। देन ट्रीटमेंट लेते हैं, और ट्रीटमेंट अगर उस जगह पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अपन को नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उसके बाद अपन उससे रेफरल सिस्टम यूज़ करते हैं। अंडर द अर्ली डायग्नोसिस फर्स्टली क्या करते हैं अपन सेकेंडरी प्रिवेंशन में, जैसे कि पर्सन को अर्ली डिटेक्ट करना है। अगर पर्सन अपने पास आया और उसको कोई भी सिम्टम्स उसमें नज़र आ रहे हैं तो अपन फर्स्टली उसका स्क्रीनिंग कराएंगे, जिससे कि अपन को जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट्स में पता चल जाएगा कि पर्सन किस चीज़ से सर्वाइव कर रहा है। देन नेक्स्ट वन इज अपन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। दीज आर द सेकेंडरी प्रिवेंशन। The secondary prevention, it is a prevent for the emergence of complication. Secondary prevention जो होता है उसमें अपन क्या करते हैं, complication जो डिसीज़ आ गई है उसके complications को कंट्रोल करते हैं कि वो डिसीज़ अब इससे आगे ना बढ़े। Then secondary prevention attempts to arrest the disease process, restore health by seeking out unrecognized diseases and treating it before irreversible pathological changes take place and reverse communicability of infectious diseases. These are the secondary prevention. Then objective of secondary prevention is complete cure and prevent the progression of a disease process. Next, to prevent the spread of a disease by curing all the known cases. To prevent the complication and sequel of a disease. Then to shorten the period of disability, means अपन को उसकी disability का जो period है उसको कम से कम करना है कि ये जो disease अब अकर हो गई है ये इससे और ज़्यादा आगे ना बढ़े। Then ये और आगे ना बढ़े means secondary से ये tertiary stage में ना पहुँचे, अपन को इसको वहीं पर prevent करना है। देन अर्ली डायग्नोसिस, इसके अंदर अपन ने पहले ही देख लिया कि अपन का प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन में अपन को क्या करना है, अर्ली डायग्नोसिस करना है। अरेस्ट स्टॉप द डिसीज प्रोसेस, रेस्टोर द हेल्थ, treat the disease before irreversible pathological changes occur, then reverse the communicability of infectious disease. These are under the prevention of secondary prevention. Then early diagnosis is better prognosis. क्या होता है, अपन जल्द से जल्द डायग्नोस करेंगे तो उसका रिजल्ट बेटर आएगा अपने लिए, और अपन डिले करेंगे किसी भी डिसीज़ के लिए तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत डेंजरस होगा। देन की टू रिमेंबर, फर्स्टली P फॉर प्रिवेंशन, देन सेकेंडरी S फॉर स्क्रीनिंग, देन T फॉर टर्शरी फॉर ट्रीटमेंट। Then tertiary prevention, it includes, it
used when the disease process has advanced beyond its early stage. It means in word words we will discuss the tertiary prevention is a late stage of a डिसीजेस. ठीक है, जब अपन उस चीज़ में लेट स्टेज में आ जाते हैं, वो स्टेज बहुत आगे बढ़ जाती है, वो टर्शरी प्रिवेंशन होता है. इट डिफाइंड एज ऑल द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पार्टमेंट्स एंड डिसेबिलिटी एंड टू प्रमोट द पेशेंट्स एडजस्टमेंट टू irremediable conditions. These are the tertiary preventions. Then intervention that should be accomplished the stage of tertiary prevention or disability limitation or rehabilitation. Under the tertiary prevention it means अपन rehabilitation period में आ चुके हैं. अब अपन के अंदर means क्या है, अब अपन इतना लेट हो चुके हैं कि अपने अंदर disability limitation and rehabilitation process start हो गई है. Then intervention in late pathogenesis phases. Under that firstly disease आई. टर्शरी पीरियड में क्या होता है, डिसीज़ आई, डिसीज़ के बाद इम्पेयरमेंट आया, इम्पेयरमेंट के बाद डिसेबिलिटी आएगी, देन एट लास्ट पेशेंट जो है वो हैंडीकैप होगा. अंडर द डिसेबिलिटी लिमिटेशन टू प्रिवेंट और हॉल्ट द ट्रांजिशन ऑफ अ डिसीज प्रोसेस फ्रॉम इम्पेयरमेंट एंड हैंडीकैप. इन इम्पेयरमेंट एनी लॉस और एबनॉर्मलिटीज ऑफ अ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिक स्ट्रक्चर और functions. Then disability, any restriction or lack of ability to perform an activity in the manner considered normal for a human being. Disability क्या कहलाती है, जब अपन किसी भी चीज़ को करने में lack of ability हो, अपन properly उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी disability में आ जाता है. It means the human being was not performed properly. Then handicapped, under the handicapped, disadvantage for a given individual resulting from impairment or disability that limits or prevent the fulfillment of a role that is normal for the individual. It means the best example, disease क्या है, dental caries क्या है, एक disease है, उसका दांत क्या हुआ, खराब हुआ है, इस पिक में आप देखो. देन इम्पेयरमेंट आया, क्या इम्पेयरमेंट आया, उसका जो वो था टूथ वो रिमूव कर दिया गया, तो लॉस ऑफ टूथ हो गया. देन उसकी डिसेबिलिटी क्या है, वो कैन नॉट टॉक, वो क्या करेगा, पर्सन्स के बीच में जाके प्रॉपरली टॉक नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि उसको शेमनेस फील होगी. देन एक तरीके से क्या होगा, वो हैंडीकैप्ड कहलाएगा. क्यों कहलाएगा, क्योंकि वो कैन नॉट सोशलाइज्ड, वो सारे ग्रुप में सारे पर्सन से अपने आप को डिफरेंट समझेगा, उनसे अलग रहेगा. क्यों, क्योंकि उसको शेमलेस फील होगा. इसलिए ये डिसीज, देन इम्पेयरमेंट, देन डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप. देन अब जब वो हैंडीकैप्ड हो जाएगा तो उसके बाद एक रिहैबिलिटेशन पीरियड आएगा, है ना. उसमें रोल ऑफ नर्सेज जो है वो स्टार्ट होगा. बेसिकली रिहैबिलिटेशन में रोल नर्सेज जो है वो प्रॉपरली अपना रोल निभाती हैं. जैसे कि रिहैबिलिटेशन फर्स्टली क्या होता है, रिहैबिलिटेशन इज डिफाइंड एज द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स for training or retraining the individual to the highest possible level of functional ability. किसी भी इंसान की उस कंडीशन से उसको बाहर निकालना, जिस टाइम वो सर्वाइव कर रहा है उसको प्रॉपरली बाहर निकाल कर उसको वापस से उस कंडीशन में पुरानी कंडीशन में लेकर आना रिहैबिलिटेशन होता है. चाहे वो वोकेशनली, मेडिकली, सोशली, जो भी रिहैबिलिटेशन है उससे उसको प्रॉपरली बाहर लेकर आना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए उसको प्रॉपरली एबल बनाना, ये होता है रिहैबिलिटेशन. देन types of rehabilitation. Under the types of rehabilitation, medical rehabilitation, vocational rehabilitation, social rehabilitation and psychological rehabilitation. Under the medical rehabilitation, restoration of bodily function, जिसमें अपन क्या करते हैं मेडिकल रिहेबिलिटेशन में, उसकी बॉडी फंक्शन को प्रॉपरली रिस्टोर करते हैं. इट मीन्स अपन उसको ट्रीटमेंट करके उसको प्रॉपरली मेडिकल रिहेबिलिटेट करते हैं, है ना, उसकी बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने की कंडीशन में लेके आते हैं. देन वोकेशनल रिहेबिलिटेशन. अंडर द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, रिस्टोरेशन ऑफ द कैपेसिटी टू अर्न अ लाइवलीहुड, अपनी जीवन शैली को जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो प्रॉपरली वापस से उसको वोकेशनली रिहेबिलिटेशन देना. इट मीन्स उसको एनकरेज करना कि नहीं, अभी भी आप जॉब कर सकते हैं, आप मनी अर्न कर सकते हैं. इस चीज़ के लिए उसको अपन को
उसको रिहैबिलिटेट करना है, उसको एनकरेज करना है। देन सोशल रिहैबिलिटेशन, अंडर द सोशल रिहैबिलिटेशन रेस्टोरेशन ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप। इट मीन्स उसको ये चीज़ अपन को करना है कि उसको शेमलेस फील नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपका हाथ नहीं रहा या आपका पैर नहीं रहा तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी भी आप सोशली अपनी लाइफ को जी सकते हैं और अपनी फैमिली और आगे सोशली रिलेशनशिप में आप आगे प्रॉपरली बढ़ सकते हैं। देन psychological rehabilitation, under the psychological rehabilitation restoration of personal dignity and confidence, उसके कॉन्फिडेंस को वापस लाना, उसकी डिग्निटी को, उसकी जो डिग्निटी है उसको वापस लाना, उसको अपन को हेल्थ, एक तरीके का हेल्थ एजुकेशन देना है। हेल्थ एजुकेशन मतलब अपन को उसको मॉरल को आगे बढ़ाना है, उसको सपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें अपन को रिहैबिलिटेशन में करना है। देन द प्रिंसिपल ऑफ रिहैबिलिटेशन, जब अपन किसी को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, कोई पर्सन, कोई पेशेंट अपने अंडर द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के अंदर है, तो उसके प्रिंसिपल क्या हैं? इट मीन्स एनेबल टाइमली रिकवरी, रीस्टेबलाइज, रीट्रेन, रीमोटिवेट, रीसोशलाइज एंड रीइंट्रीगेट। अपन को क्या करना है? उसको रीस्टेबलाइज करना है, रीट्रेन करना है, रीमोटिवेट करना है, रीसोशलाइज एंड रीइंट्रीगेट एंड एनेबल टाइमली रिकवरी। उसको प्रॉपरली रिकवरी का टाइम देना है, उसको प्रॉपरली रीट्रेन करना है, मोटिवेट करना है हर चीज़ के लिए और एक सोशलाइज पर्सन बनाना है। इट इज़ अ टर्शरी प्रिवेंशन। देन इन वन एग्जाम्पल टर्शरी प्रिवेंशन क्या है? टर्शरी प्रिवेंशन इट इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस ऑफ अ डिसेबिलिटी। अपन को क्या करना है? डिसेबिलिटी को जो हो गई है उसको कंट्रोल करना है। देन वी आर ट्राइंग टू लिमिट द डिसेबिलिटी। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन। थैंक यू।